Hi student, how are you? Hope you all are good. I am Jatin Chavan and today we are starting with the subject Introduction to Photography. So first of all, we will be discussing the word photography. So it is German word. Photo means light and graphy means drawing. 1 minute student. Photo photo means light. Photo means light. Okay, in German photo means light and graphy means drawing. Graphy means drawing. Okay, so student, there is a three type of photography. One is art photography, second is documentary photography, and third is commercial photography. So there is a three type of photography. Art photography, first is a art photography. So we will see what is a art photography. Art photography is nothing but a photography which describe idea or a message via its photography. Okay, means any message or idea is coming or out by a photo. It is known as art photography. For example, I will show you art photography example. It is a art photography. The painter want to describe a landscape of a photo. It is known as a art photography. There is certain message in this photo. The famous photo of Mona Lisa and the famous painter Leonardo da Vinci was a famous art photographer. Why this painting is so famous? So student, because this painting described a message and idea. Via this painting, certain message and idea was given by Leonardo da Vinci. So this painting is a world famous painting. There are n numbers of messages in this painting. For example, you can see the smile of a painting. This smile, it is known that it is not happy and it is happy also. The smile which is described here, you can see it. Some photographer has said that Mona Lisa does not have a teeth, that's why his smile was like this. So there is n number of messages. Some are saying that painting, the smile of Mona Lisa is, हम कहते हैं ना कि अंदर से आदमी दुखी है पर वो चेहरे पे स्माइल डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसे इस तरीके की स्माइल दी गई है. तो देर आर एन नंबर ऑफ मैसेज एंड आइडिया कमिंग आउट ऑफ पेंटिंग. It is known as art photography. So the famous painter was Leonardo da Vinci, who was an art photographer. Now our second type of photography is documentary photography. Second type. First was an art photography. Second is a documentary type of photography. So student, what is documentary type of photography? A photography which describe or show any historical event. Any historical event is described by a photo, or any environment
environment or any culture. So student, here you can see the photography, example of photography of documentary. See here the Taj Mahal photo. You can directly see it is an historical monument. Taj Mahal is a historical monument. When you click the photo of Taj Mahal, it described his history. उसकी हिस्ट्री वो डिस्क्राइब करता है, वो उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी. और एक मैं आपको डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी का एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ. देखिए ये हमारा कल्चर डिस्क्राइब करता है ये फ़ोटो, तो इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ फोटोग्राफी. आजकल तो वेडिंग के जो फ़ोटो होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट्री टाइप में लिए जाते हैं. मतलब एक सीक्वेंस रहता है कि पहले हल्दी हुई, फिर उसके बाद मेहंदी रात हुई, फिर उसके बाद शादी हुई, बारात लेके गए. ये एक डॉक्यूमेंट्री, एक इवेंट, तो उसे डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कहा जाता है. थर्ड वन इज स्टूडेंट, थर्ड वन इज कमर्शियल फोटोग्राफी. सो कमर्शियल फोटोग्राफी मीन्स एनी एड in print media, magazine or TV via a photo is known as commercial photography. For example, any ad of jewelry or any ad of any product via a photo, it is known as commercial advertising. So example of commercial advertising is, you can see here Coca-Cola is doing his commercial advertising. Okay, here Nikon camera photography advertising is done. Okay, you can see here they are highlighting their, what we can say, company name via a photography. Okay, so there are three type of photography. Now we will moving towards main topic, which is expected ratio. Okay, what expected ratio? Expected ratio. So student, expected ratio, I will give you an example. You are seeing this video in YouTube. So YouTube expected ratio is 16:9. 16:9. So you are holding your phone in this direction. So your YouTube expected ratio is 16 is wide. This is a wide. This is a wide, and this is a height. So height will be 9. Okay. While you are using YouTube, it is 16:9 expected ratio. Now when you are using or when you are seeing a movie in cinema, so your movie screen in cinema is usually like this. आप जब थिएटर में जाते हो तो थिएटर का जो स्क्रीन रहता है वो इस तरीके से रहता है. तो ये 21:9 होता है. ओके, सो 21 जो होता है वो वाइड होता है और 9 जो होती है वो हाइट होती है. इसलिए यूजुअली हमें एक वाइड स्क्रीन दिखती है मूवी के टाइम पे. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टैंड. टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कोई स्टोरी हम बनाते हैं तो उसका जो एक्सपेक्टेड रेशो होता है वो होता है 9:16. फॉर एग्जांपल, आप टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी बनाते हैं तो हम किस एंगल में फ़ोन पकड़ते हैं? इस एंगल में. यूट्यूब देखते हैं तब ये एंगल में होता है फ़ोन हमारा, बट हम जब स्टोरी बनाते हैं तब ये सीधे एंगल में होता है. तो यहाँ पे 9:16 होता है एक्सपेक्टेड रेशो जब हम स्टोरी वगैरह बनाते रहते हैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे. तो 9:16. तो 9 क्या हो जाता है हमारा? वाइड. मतलब वाइड कम हो जाता है और हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है 16. तो इसे कहते हैं यूट्यूब. ये यूट्यूब पे भी स्टोरी बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, मैसेंजर पे, तो वो 9:16 होता है. ओके, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो एक्सपेक्टेड रेशो आपको समझ में आया स्टूडेंट. नाउ वी विल बी मूविंग टू एक्सपोजर ऑफ ए लाइट. मतलब जब हम फ़ोटो खींचते हैं
स्टूडेंट, जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो के अंदर बेसिक फ़ोटोग्राफी आपको समझना ज़रूरी है। तो बेसिक फ़ोटोग्राफी में कितनी चीज़ रहती है? 3 चीज़ें होती है। बेसिक फ़ोटोग्राफी में 3 चीज़ होती है। पहला होता है एपरेचर, एपरेचर TURE, ओके। बेसिक उसमें होता है, पहला होता है एपरेचर, सेकंड होता है शटर, शटर स्पीड, ओके। और थर्ड होता है ISO, थर्ड होता है ISO। सो ये 3 चीज़ होती है। तो मैं फर्स्ट से चालू करना चाहूँगा। सो फर्स्ट थिंग इज एपरेचर, फर्स्ट थिंग इज एपरेचर। सो पहला जो चीज़ है वो है एपरेचर। सो नाउ व्हाट इज एपरेचर? एपरेचर इज अमाउंट ऑफ लाइट नीडेड। हम कोई भी कैमरा से फ़ोटो निकालते हैं तो कितने अमाउंट की लाइट कैमरा को रिक्वायर है, इसे कहा जाता है एपरेचर। ये है जो चीज़ है, अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल समझो डे है तो दिन में ऑलरेडी सनलाइट रहती है, तो हमें हमारे कैमरे की जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो कम करनी चाहिए। और नाइट है तो लाइट में हमारे कैमरा का जो एपरेचर है उसे बढ़ाना चाहिए। तो उसे कहा जाता है अमाउंट ऑफ लाइट। तो एपरेचर को मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे ये होता है एपरेचर। ये यहाँ पे एक ब्लेड लगी होती है। ये जो हम देखते हैं कि यूजुअली कैमरामैन इसे घुमाता है, लाइट को वो एडजस्ट करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर डे है तो वो इसमें एक होल रहता है, उसे कम कर देता है। इसे घुमा के, ये चीज़ को घुमा के वो होल को कम किया जाता है। सो ताकि जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो कम एंटर हो कैमरा में, क्योंकि ऑलरेडी डे लाइट मिल रही है। पर जब नाइट होता है तो इस यहाँ पे बढ़ाया जाता है, यहाँ पे वो होल बढ़ाया जाता है क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा एंटर हो फोटो में। सो इसे एपरेचर कहा जाता है। ओके, सो यू हैव अंडरस्टैंड इट। सो सेकेंड इज शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या होती है स्टूडेंट? शटर स्पीड ये होती है कि यहाँ पे देखिए, शटर स्पीड SHUTTER, ओके। शटर स्पीड, शटर स्पीड क्या होती है? टाइम रिक्वायर्स टू लाइट। कितना अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर होता है लाइट को एंटर होने में, कैमरा में एंटर होने में। 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 15 सेकेंड, कितना टाइम रिक्वायर होता है। तो वो टाइम में देखो, फोटोग्राफर यूजुअली डायरेक्ट ही फ़ोटो नहीं खींच लेता, वो पहले एपरेचर घुमाता है, फिर कुछ टाइम तक आपको बोलता है कि ऐसे ही स्टेबल रही है, और वो डायरेक्ट नहीं खींचता है, उसको कुछ टाइम लगता है। तो वो जब लाइट उतनी रिक्वायर में एडजस्ट हो जाती है कैमरा के अंदर, तब वो फ़ोटो खींचता है। तो उसे कहते हैं शटर स्पीड। नाउ नेक्स्ट इज, थर्ड इज ISO। सो ISO, तो ISO मीन्स, ISO is nothing but a amount of light requires in a camera. For example, शटर स्पीड का भी सेम काम है, वो अमाउंट ऑफ लाइट को 15 सेकेंड तक 30। ISO क्या होता है? जनरली ISO 100 होता है। जनरली ISO is 100। सो जनरली ISO is 100 मीन्स ISO एडजस्ट करता है लाइट को। मतलब समझो कि डे लाइट में आप फ़ोटो खींच रहे हो, तो आपने आपका जो कैमरा लेंस है वो बढ़ा दिया है, तो वो फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो ISO जो है ना, वो ऑटोमेटिकली लाइट को एडजस्ट कर लेता है, इसको कहते हैं ISO। सो आपको 3 चीज़ें समझ में आई, शटर, एपरेचर, शटर स्पीड और ISO। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे।
ओके स्टूडेंट, आज हमने सब्जेक्ट चालू किया इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी. होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी मूविंग to next chapter. Okay.